So finally, we have to move to the final accounts. Means after entries, ledgers, trial balance, then finally we have to come to the final accounts. So the final accounts consist of two or three things, which are first trading account. Instead of trading account, some firm may also maintain the manufacturing account. Then after we have to prepare the profit and loss account. Then finally we have to prepare the balance sheet. Clear? So, so what is the basically meaning of final account? The final account basically prepare at the end of the financial year, that is 31st March of every year, and the financial statement generally shows the profitability of the business. Now, what is the meaning of profitability? Profitability means the profit either loss. And the financial statement also describe about the financial position of the business. Now, question is, what is financial position? The financial position means the position of your assets and the position of liability at the end of the year. Clear? At the end of the year, we also find out what is our cash flow. Cash flow means cash inflow and the cash outflow. So, two things we find out from the financial statement: profitability, financial position, and the cash flow. And we have a different instrument to find out these things, like ratio analysis, which will be discussed in later in the company account. Right now, we are making the final account of sole proprietorship. We can also make the final account of partnership. We can also make the final account of company. But before that, you have to understand the basic concept. So, after preparing the trial balance, the next level of work in the accounting is called as a final account, in which we have to prepare trading accounts, profit and loss account, and the balance sheet. Some people also make the manufacturing account, as I already told you that. Now, why the manufacturing and why the trading account? If the firm is only purchasing the goods for the purpose of resale, the firm will prepare the trading account. मीन्स लेट से आप कोई गुड्स खरीद रहे हैं और उसको सिर्फ खरीद खरीद के बेच रहे हैं, यू विल प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट. बट इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग दीज गुड्स, यदि आप इनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, देन यू विल मेक द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. नाउ ये बहुत सारी चीजें दी हुई है, बट मैं आपको यहाँ से ना एक्सप्लेन करती हूँ, मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट में रहेगा क्या. सपोज लेट्स से दिस इज अ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट, this is debit side, this is credit side. And we know that debit all the expenses and losses. जर्नल एंट्री में हमने ये पढ़ा था. दो साइड्स होती हैं इसकी, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट. ना, अब इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक. लेट मी सी, यदि इसका फॉर्मेट ऑलरेडी गिवन होगा तो फिर अपन इसको नहीं बनाएंगे. देख लेता हूँ एक मिनट.
ये दिया हुआ है ना, क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हुआ है, लेकिन अपन इसको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा, और ट्रेडिंग अकाउंट्स के लास्ट में लिखा जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31st। ये तो दिसंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ पर लिखेंगे 31st मार्च, और जिस भी ईयर का आप बना रहे हो उसका। सबसे पहले आपको नाम लिखना है, ट्रेडर का नाम लिखना है, जैसे कि मान लीजिए XYZ एंटरप्राइज। XYZ एंटरप्राइज आप सबसे पहले नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर लिखेंगे आप द फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। जो भी आपका ईयर रहे आप उस ईयर का बनाएंगे। अब डेबिट साइड आपको लिखना क्या है? डेबिट साइड बेसिकली आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस? कुछ दिन पहले याद होगा आपको शायद, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डेफिनेशन मैंने आपको दी थी, बोर्ड पर दी थी शायद, जहां तक मुझे याद है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दीज आर द सम एक्सपेंसेस विच आर अनसर्टेन। मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया हुआ है, ये बुक्स में पता नहीं आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, दीज एक्सपेंसेस आर द अनसर्टेन which may be happen anytime. The timing is not fixed, and these are affecting our daily routine. Like मीन्स इन्हीं से हमारा डेली रूटीन का वर्क चलता है। Then these are the production related, या यूं कहें कि प्रोडक्शन रिलेटेड ना कह के हम यूं कहें कि दीज आर द फैक्ट्री रिलेटेड। तो ऐसा कोई एक्सपेंस जो अनसर्टेन हो, या डेली रूटीन्स में आ रहा हो, या फिर हमारा प्रोडक्शन या फैक्ट्री से रिलेटेड हो, हम उसको समझ जाएंगे कि हमारा कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जैसे कि आप देखोगे ओपनिंग, हमेशा देखिए ओपनिंग स्टॉक तो आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। हमेशा ये ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ से शुरू होगा? ओपनिंग स्टॉक से ही शुरू होगा। देन आपका परचेज, परचेज आप देख सकते हो अनसर्टेन होता है, कभी भी आपको परचेसिंग करनी पड़ सकती है। परचेज में से आप माइनस कर देते हो परचेज रिटर्न। जैसे कि मान लीजिए यहाँ मान लीजिए कुछ परचेज रहा होगा 87,500, इसमें से हमने 2,500 का स्टॉक माइनस कर दिया है, तो टोटल परचेसिंग हमारी कितने की बचेगी? 85,000 की परचेसिंग बचेगी। ठीक है ना, ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 85,000। देन वेजेस, अब यहाँ पर ऐड कौन सी चीज प्लस करनी है कौन सी चीज माइनस करनी है मैं भी बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको ये वाला लॉजिक समझ में नहीं आएगा कि यहाँ प्लस माइनस क्यों किया, इसके लिए रोक के चलते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसके बाद है कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड का मतलब होता है कि आपके पास से कोई स्टॉक की गाड़ी आई है ना, तो उसके बदले आपको किराया वगैरह पे करना पड़ा, दैट इज कैरीज इनवर्ड। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन द प्रोडक्शन का मतलब, रॉयल्टी समझते हैं आप लोग? रॉयल्टी नहीं समझते? इसका रॉयल्टी का मतलब वही है लगभग लगभग, जैसे कि मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूं आपको। लेट से आपको, आपका घर पन्ना में है और आपने किया कि हमें ये जमीन दे दो हीरे निकालने के लिए, है ना, तो इतनी जमीन पे आपको मिल गया कि हीरे निकालेंगे हम। ठीक है ना, तो उस पर जितने टाइम ये, अब आप जब ये जमीन आप लोगे, गारंटी तो नहीं है कि हीरे निकलेंगे, और ये भी गारंटी नहीं है कि कितने निकलेंगे, निकल भी सकते हैं, दोनों ही चांसेस हैं, लोग रिस्क लेते हैं। तो इस जमीन का एक तो रहेगा किराया, कि यदि कुछ नहीं लगा तो किराया तो आपको देना ही पड़ेगा। दूसरा, यदि डायमंड निकल आता है, तो मान लीजिए 1 लाख का डायमंड है, तो उस पर गवर्नमेंट को आपको 30% देना पड़ेगा, बाकी 70% आप खुद रख लेना। तो ये जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हो गवर्नमेंट को, दिस इज कॉल्ड एज द रॉयल्टी। जितना ज्यादा
प्रोडक्शन होगा वहां से उतनी ज्यादा रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। दूसरा एग्जांपल, जब कभी आपने देखा होगा रेत रेत निकलती है नदी के घाटों से, तो जब यहाँ से बड़े बड़े डंपर जो होते हैं या फिर आप जेसीबी वगैरह वो रेत निकालते हैं, तो जितना रेत निकालते जाते हैं, जितना ट्रॉली उनका भरता जाता है, उस हिसाब से 200 या 500 रुपए कहाँ पे करने पड़ते हैं? रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, गवर्नमेंट को पेमेंट करनी पड़ती है। दैट इज कॉल्ड एज अ रॉयल्टी ऑन द प्रोडक्शन। माइंस का एग्जांपल आप लिख सकते हो, जितनी माइंस में कोयला निकलेगा उस कोयले पर आपको कुछ परसेंटेज किसको देना पड़ेगा? गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज द रॉयल्टी। प्राइवेट सेक्टर में भी एप्लीकेबल है, दोनों पे लगती है। ठीक है ना। जनरली तो लीज पे ही लगेगी, क्योंकि आप जो भी आप जमीन वगैरह ले रहे हैं, जैसे आपने घाट लिए तो किराए से लिए, लीज पर लिए, या फिर आपने कोई भी जो नेचुरल रिसोर्स है डिगिंग करने के लिए, नेचुरल रिसोर्स निकालने के लिए, आपकी खुद की जमीन तो होगी नहीं। आप नेचुरल जमीन जो होती है ना, वो आप गवर्नमेंट से लेते हैं लीज पे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया पन्ना में, तो आप जब जमीन लेंगे ना, गवर्नमेंट से लेंगे कि ये वाली जमीन हमें दे दो, इस पे हम देख लेंगे कुछ निकलेगा तो मेहनत कौन करेगा पूरी? आदमी। रिस्क कौन लेगा? आदमी। नहीं निकला तो उसका पैसा गया, लेकिन निकल आया उसमें से तो कुछ कमीशन कहाँ चला जाएगा? गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। दैट कमीशन इज कॉल्ड एज अ रॉयल्टी। नेक्स्ट, आप दूसरा एग्जांपल बुक्स का भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई बुक्स लिखी, ठीक है ना, बुक्स लिख ली, लेकिन बुक छापेगा कौन? पब्लिशर छापेगा। लेकिन क्या गारंटी आपकी बुक चले या ना चले? तो पब्लिशर क्या करता है? गारंटी ले, मतलब अपनी रिस्क पर कुछ बुक्स प्रिंट कर लेता है। लेट से 100 बुक्स प्रिंट कर ली। अब 100 बुक्स प्रिंट कर तो ली, लेकिन पता चला आपकी बुक्स किसी ने पसंद करी या ना करी, क्या गारंटी है? तो वो पूरी रिस्क लेता है। तो इसमें से जो भी कमाई होगी, मान लीजिए 100 × 100 की बुक्स थी 10,000, तो कुछ पार्ट चला जाएगा ऑथर को। दैट इज कॉल्ड एज द रॉयल्टी। ठीक है ना। कुछ पार्ट आपको जो रहेगा वो, इन जितनी ज्यादा बुक्स बिकती जाएंगी उतना ज्यादा आपको रॉयल्टी मिलती जाएगी। सेम यहाँ पर है, जितनी ज्यादा रेत निकलती जाएगी उतनी ज्यादा रॉयल्टी गवर्नमेंट को पहुंचती जाएगी। जितने ज्यादा डायमंड निकलते जाएंगे उतनी ज्यादा रॉयल्टी गवर्नमेंट को पहुंचेगी। जितना ज्यादा कोल माइंस में कोल निकलेगा उतनी रॉयल्टी गवर्नमेंट को पहुंचेगी। ठीक है ना। चुपचाप रख लो, है नहीं? ये बात भी सही है, लेकिन कभी ना कभी तो बेचोगे उसको। रख के क्या करेंगे घर में? भाई डायमंड मिल गए, 4-5 डायमंड मिल गए, अच्छी बात है, लेकिन उसको सजाना थोड़ी है। पैसे उल्टे, अल्टीमेटली क्यों हमने किया? पैसे मिल सके। अब डायरेक्ट यदि ज्वेलरी के पास दोगे, ठीक है ना, तो ज्वेलरी के पास यदि आप दे दोगे तो ज्वेलरी को जवाब देना पड़ेगा कि ये मेरे पास आया कहाँ से। फिर इलीगल माना जाएगा। फिर गवर्नमेंट इसको रजिस्टर्ड करती है। रजिस्टर्ड करने के बाद फर्स्ट होलसेलर के पास जाता है ना। तो जैसे कि मान लीजिए लकड़ियां होती है जो बड़े बड़े जंगल से काटी जाती है, लाल चंदन हो गया और ये हमारे सागौन हो गया, है ना, तो इन लकड़ियों को पहले रखा जाता है जंगल में, उन पे नंबर लिखे जाते हैं, फिर वो मार्केट में आती है। अदरवाइज ब्लैक मार्केटिंग तो होती ही होती है। लेकिन मान लीजिए कल के दिन ये चेयर है यहाँ पे, किसी ने कह दिया कि ये सागौन की है, ठीक है ना, चेक करने वाले आए, इस पे कुछ नहीं मिला, तो ये इलीगल मानी जाएगी ना। अदरवाइज हर लकड़ी पर कुछ नंबर लिखा रहता है, ठीक है ना। तो उसकी फिर वहीं से टैक्स जनरेट होता है। अब आप सोचो ना, जैसे कि आपने जीएसटी कभी पढ़ा हो यदि, तो आपने सोचा ना कि मैन्युफैक्चरर से टैक्स लगना शुरू होता है, फिर वो होलसेलर पे जाता है, फिर रिटेलर पे। तो क्यों लगा मैन्युफैक्चरर पे? मैन्युफैक्चरर पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है, इसका मतलब अब वो गुड्स लीगल हो गया, है ना, गवर्नमेंट की काउंटिंग में आ गया वो गुड्स। और गवर्नमेंट पे कैसे पता लगाती है कि हमारी जीडीपी कितनी है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी? बट हाउ टू कैलकुलेट? The final product and services available in the country. So how they find out what is the final product in country? They find out with the help of these manufacturers. या फिर दो तीन मेथड होती हैं आपकी, कंजम्पशन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो आप उन मेथड से भी पता लगा लेते हैं, बट अल्टीमेटली आप ये नेटवर्क समझो कि नेटवर्क बनता कैसे है।
So this is the royalty on the production. Next is, आप क्रेडिट साइड देखोगे मोस्टली आपको एक या दो ही चीज दिखेंगी। आपको या तो दिखेगा सेल, सेल से आपको क्या होती है इनकम, इस सेल्स में से आप माइनस कर देंगे क्या, सेल्स रिटर्न। और फाइनली आपको क्रेडिट साइड एक और चीज लिख देनी है क्या, क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स में से आप क्या माइनस कर देंगे, सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे। अब आते हैं अपन जो चीज मैंने छोड़ी थी अभी अभी, ये क्या मामला है, वेजेस का इसमें क्या ऐड किया गया। अब आप इसको समझो मामला क्या है। लेट्स से वेजेस इज इक्वल टू 1000 पर मंथ। तो एक मंथ की यदि वेजेस 1000 रुपए है, तो 12 महीने का कितना बनेगा, इज इक्वल टू 12,000। ठीक है ना। चलिए, मेरी मेरी जो टोटल वेजेस हम जो पे करेंगे अपने एम्प्लॉयज को, वो कितनी है, 12,000। अब क्या गारंटी है कि आप 12 पे ही करो, हो सकता है कभी कम कर दो, कभी ज्यादा कर दो। हो सकता है कभी आपने 11,000 रुपए दिए उसको एक साल के अंदर, और हो सकता है कभी कभार आपने उसको अगले साल आपने उसको 11,000 12,000 की जगह कितने दे दिए, 13,000 दे दिए। दोनों चांस बनते हैं। तो सैलरी 12,000 बन रही थी, लेकिन आपने एक साल के अंदर, ध्यान ध्यान समझिएगा, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है वो साल के एंड में बन रहा है, 12 महीने के बाद बन रहा है। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट की खास बात यह है कि आपको इस अकाउंट के अंदर साल भर का एक्सपेंस लिखना है, चाहे आपने पे किया हो या ना किया हो। अकाउंटिंग जो होगी वो सिर्फ 12 महीने की ही होगी, ध्यान से समझिएगा। तो जैसे कि मान लीजिए आपको देना कितने थे 12 महीने के हिसाब से, 12,000 रुपए देने थे, लेकिन केस नंबर 1 क्या है कि आपने कितने दिए, 11। तो आप क्या लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, टू वेजेस 11,000, और यहां पर आप लिख दोगे टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग कितना, 1,000। तो टोटल कितना बन जाएगा ये, 12,000। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हमको तो 12 महीने की सैलरी लिखनी है, पे चाहे आपने 11 की हो, चाहे 13 की हो, चाहे 2 साल की कर दी हो। इस ट्रेडिंग अकाउंट में जो वेजेस लिखा जाएगा या सैलरी लिखा जाएगा, वो कितने साल का लिखा जाएगा, एक साल का लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो अमाउंट तो एक साल की ही आएगी। ठीक है ना। यदि किसी को नहीं आया हो समझ में, मैं फिर से समझा दे रहा हूं। सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में देखो आपने कितनी वेजेस भर दी है, 13,000, लेकिन अमाउंट वाले कॉलम में, यहां कहीं मैंने फॉर्मेट बनाया था क्या, नहीं बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट, तो आपने यहां पर लिखा टू वेजेस। तो एक महीने की एक साल की आपकी टोटल वेजेस कितनी बन रही है, तो आपका अमाउंट तो 12,000 आएगा यहां पर, कैसे भी करके। अब आप देखो पहला केस आपने भरे कितने हैं, सॉरी सेकंड वाला केस देखो कि भरने 12 थे, आपने वेजेस कितनी दे दी, 13 दे दी। तो यहां पर तो आप 13 ही लिखोगे अंदर, अमाउंट वाला कॉलम नहीं है ये है कौन सा, पर्टिकुलर वाला कॉलम, और अमाउंट वाला कॉलम ये वाला है। अमाउंट वाले कॉलम में तो भैया 12,000 ही आएगा, लेकिन आपने भर कितनी दी, 13,000। तो ऐसा क्या किया जाए 13 के साथ की 12 आ जाए, तो 1,000 रुपए आपको क्या करने पड़ेंगे। ये 1,000 रुपए एक्स्ट्रा क्या है, एडवांस में दे दिए ना आपने। और एडवांस में यदि आप पेमेंट कर देते हो तो उसको लिखोगे आप एडवांस वेजेस या फिर प्रीपेड वेजेस। तो ये हो जाएगा माइनस, तो 13 में से 1 गया, आपका क्या बचेगा, 12। ठीक है ना। सेकंड फर्स्ट वाला केस, फर्स्ट वाला केस देखते हैं। फर्स्ट वाले केस में आपको टोटल यहाँ पर अमाउंट में कितनी लाना है, 12 ही लाना है, लेकिन आपने सैलरी कितनी, वेजेस कितनी भरी है, सिर्फ वेजेस इज इक्वल टू 11,000। अब ऐसा 11 के साथ ऐसा क्या किया जाए कि 12 हो जाए, 1,000 प्लस करना पड़ेगा। तो 1,000 रुपए यहाँ पर आपको प्लस करना पड़ेगा, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग वेजेस। मैंने अभी
बाकी रख के रखी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है ना, 1,000 रुपए का बाकी है मुझे देना। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस मेरे लिए क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी। मुझे 1,000 रुपए अभी उस व्यक्ति के पे करना है, करे नहीं है। और पिछले केस में हमारा 1,000 रुपए एडवांस जा रहा था। एडवांस हमारे लिए एसेट्स है, क्योंकि हम उस व्यक्ति से अब एक्स्ट्रा काम करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा प्लस रहेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका क्या रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है ना। तो दो चीजें आपकी क्लियर हो गई। ट्रेडिंग अकाउंट में, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्या, अगला जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने वाला है उसमें भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। कि यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो प्लस करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो माइनस करेंगे। फिर इनकम आती है वो, अभी अपन बात कर रहे हैं एक्सपेंस का। ट्रेडिंग अकाउंट में अपन अभी डेबिट साइड पर हैं, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आते हैं। अभी हम इनकम साइड भी आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। आगे देखते हैं। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कुछ और होता, मान लीजिए कमीशन होता। कमीशन हमारे लिए क्या रहेगी, इनकम रहेगी। कमीशन हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इनकम वाला पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपकी कमीशन आपको मिल रही है 500 रुपए पर मंथ। कमीशन इज इक्वल टू 500 पर मंथ। तो 1 ईयर की कमीशन कितनी हो जाएगी आपकी, 1 ईयर कमीशन इज इक्वल टू 6,000 रुपीज। लेकिन ईयर के एंड में क्या हुआ, केस नंबर फर्स्ट, कमीशन रिसीव इज इक्वल टू 5,700। तो आप क्या लिखेंगे, बाय कमीशन। आपको अमाउंट तो पूरे साल का लिखना है, अमाउंट तो आपको कितने का लिखना है, पूरे साल का। लेकिन एक्चुअल कमीशन कितनी रिसीव हुई आपको, 5,000। अब क्या किया जाए इसमें, 300 ऐड किए जाएं। और ये 300 ऐड किस चीज के कर रहे हैं अपन, कि हमको इनकम होनी थी लेकिन इनकम हुई नहीं है। तो ऐसी इनकम को अपन क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम। तो हमारा एक रूल क्लियर हो गया कि आउटस्टैंडिंग इनकम हमको अपनी इनकम में क्या करना है, ऐड करना है। दूसरा केस देखते हैं कि कमीशन रिसीव 6,700। 6,700। अब हमारा अमाउंट तो कॉलम भी सिक्स ही रहेगा, क्योंकि हमें ट्रेडिंग अकाउंट में साल भर का ही अमाउंट लिखना है। और साल भर का अमाउंट कितना बन रहा है, 6,000। मिल कितना गया है आपको, 6,000। तो कमीशन में लिखोगे आप 6,700, लेकिन अमाउंट कितना आना चाहिए आपका, 6,000। तो 6,700 में से आपको माइनस करना पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा, 700। ये 700 रुपए हमको एडवांस कमीशन मिल गई है। दिस इज कॉल्ड एज अ प्रीपेड कमीशन, माइनस करनी पड़ेगी। तो हमारा रूल बन गया कि प्रीपेड इनकम यदि है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आपके पास चार रूल्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड द प्रीपेड इनकम। चार रूल आपके पास हो गए, क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है। चलिए, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसको वर्टिकल फॉर्म में बनाया गया है। चलिए, इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जब ये पूरा ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो जाएगा, पूरा ट्रेडिंग अकाउंट आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ से मैं आपको बना के बताता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ से किस चीज से शुरुआत होगी आपकी, ओपनिंग स्टॉक,
तो यहाँ आप लिखेंगे परचेज, यहाँ लिखेंगे आप बाय सेल्स, माइनस करेंगे आप सेल्स रिटर्न, वो तो अभी ये बना ही हुआ था, अब आपको ज्यादा देखना नहीं है। इधर बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, सीधा लिख रहा हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखो डेबिट साइड आपके सारे एक्सपेंसेस जा रहे हैं और क्रेडिट साइड आपको क्या हो रही है, इनकम। अब आप सोचकर देखो एक्सपेंस ज्यादा हो जाए और इनकम कम रह जाए तो क्या रिजल्ट निकलेगा, लॉस। तो एक्सपेंस ज्यादा हो जाए, एक्सपेंस मतलब डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा हो जाए, इनकम कम पड़ जाए। मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है 2 लाख रुपए टोटल, 2 लाख का एक्सपेंस हो गया और इनकम हमारी हुई है मात्र इन दोनों को मिला के 1,80,000। तो किस साइड कम पड़ रहा है बैलेंस, क्रेडिट साइड बैलेंस कम पड़ रहा है, क्योंकि दोनों साइड का टोटल जो है हमेशा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो 2 लाख में से 1,80,000 की हमको इनकम हुई और 2 लाख का हमारा एक्सपेंस हो गया, तो 20,000 के हम अभी लॉस में चल रहे हैं। इस लॉस को लिखा जाएगा बाय ग्रॉस लॉस, ठीक है ना, इसको क्या लिखा जाएगा, बाय ग्रॉस लॉस। और यदि इनकम वाली साइड ज्यादा आ जाती है, इनकम वाली साइड ज्यादा आ जाती है, एक्सपेंस कम रह जाते हैं, तो हमारे लिए जो बैलेंस बचेगा वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना। तो डेबिट साइड बचेगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट साइड आपका बचेगा क्या, ग्रॉस लॉस। आप इस क्वेश्चन में भी देख सकते हो कि ये पूरा ट्रेडिंग अकाउंट वर्टिकल फॉर्म में बना हुआ है और वर्टिकल फॉर्म में लास्ट में आपके पास क्या बच रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि कितने का है, 2 लाख रुपए का है। आगे आते हैं अपन और चीजें देखते हैं। अभी इस ग्रॉस प्रॉफिट को अपन आगे ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट दिख रहा है, लेकिन बिफोर मेकिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम साइड में समझते हैं कि पूरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सिस्टम क्या रहेगा। ये अपन ने क्या देखा अभी अभी, ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट का अपन ने ये देखा कि शुरुआत इसकी कहां से होगी, टू ओपनिंग स्टॉक, और इधर क्रेडिट साइड आप लिखेंगे बाय सेल्स, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर डेबिट साइड परचेज, फिर यहाँ पर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एक लंबी लिस्ट है। अब मैं थोड़ा सा बैक करके आपको दिखा दे रहा हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस की क्या लिस्ट है। ये देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि आपको एक दिख रहा है यहाँ पर फ्रेट एंड इंश्योरेंस, freight and insurance paid in the connection with the acquiring of goods or making them saleable is debited to the trading account. Freight and insurance paid in the connection with the sales of goods is charged to the profit and loss account. Freight and insurance paid for the acquisition of fixed assets must be capitalized. Now question is, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डाला जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला जाए। बेसिकली तो आपको दिख ही रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ रहे हैं, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। लेकिन क्यों ट्रेडिंग अकाउंट में, क्यों, बिकॉज दिस फ्रेट एंड एक्सपेंसेस इज टोटली रिलेटेड टू द परचेजेस। और यदि परचेज आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहा है तो आपका परचेज से जुड़ा हुआ फ्रेट एंड इंश्योरेंस भी कहां पर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट है आपका कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मैंने अभी आपको समझाया था, यदि आपके पास कोई गाड़ी आई है, मतलब गुड्स लोड करके आपके पास आई है, तो उसका आपको रेंट पे करना पड़ेगा, किराया पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज द कैरेज इनवर्ड। वेजेस, वेजेस हमेशा फिक्स नहीं होते, वेजेस इज टोटली डिपेंड अपॉन द लेबर्स, लेबर्स आएगी तो हम एक्सपेंसेस पे करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो वेजेस इनकर्ड इन अ बिजनेस इज डायरेक्ट व्हेन इट इज इनकर्ड
on manufacturing or merchandise or making its saleable. अदर वेजेस आर द इनडायरेक्ट वेजेस। तो बेसिकली जो फैक्ट्री से रिलेटेड हो वो सारी वेजेस आपकी कहाँ आएंगी? ट्रेडिंग अकाउंट में। और कोई सी वेजेस यदि हो अपार्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग या फिर सेलेबल गुड्स को बनाने के लिए, उसके अलावा कोई वेजेस हो, तो फिर अपन उसको कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। जैसे आपको दो चीजें मिलेंगी, एक आपको मिलेगा सैलरी एंड वेजेस, और एक दूसरा शब्द मिलेगा आपको वेजेस एंड सैलरी। अब भाई किसको ट्रेडिंग में लिया जाए और किसको प्रॉफिट में लिया जाए, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो जिसके आगे सैलरी लिखा हो वो चला जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसके आगे वेजेस लिखा हो वो कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। अब इनका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारी फैक्ट्री में कुछ ऐसे लोग थे जो सैलरीड पर काम कर रहे थे, लेकिन सैलरी वाले सेक्शन में, मतलब मान लीजिए ऑफिस है हमारा, तो ऑफिस में सैलरी एम्प्लॉयड तो है ही है, लेकिन कुछ एम्प्लॉयड जो है वो डेली वेजेस पर भी काम कर रहे हैं। फिर अपन आते हैं वेजेस एंड सैलरी का मतलब क्या है? कि भाई हमारी फैक्ट्री में जितने भी लेबर हैं वो सारे वेजेस पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनमें से भी एक दो लोग क्या हैं? सैलरी बेस्ड पर काम कर रहे हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस एंड वेजेस एंड सैलरी। इसके बाद ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय का मतलब हिंदी में वो चुंगी उंगी कर बोलते हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है? कभी कभार जब आपकी गाड़ी आती है शहर में, मतलब भोपाल से आपकी गाड़ी सागर में आई या फिर राजगढ़, किसी भी जगह पर कहीं पर कोई गाड़ी आई, तो नो एंट्री जोन होता है। नो एंट्री जोन के पहले ही गाड़ी अंदर ले जानी पड़ती है। तो जब आपकी गाड़ी खड़ी होती है कहीं भी, तो नगर पालिका वाले आपसे एक टैक्स लेने के लिए आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्ट्रॉय। फ्यूल, पावर, लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस, मैंने क्या बोला था अभी? फैक्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए, अनसर्टेन होना चाहिए। फ्यूल, पावर, लाइटिंग, हीटिंग एक्सपेंसेस, दीज ऑल आर द रिलेटेड टू द फैक्ट्री, और इनका कोई फिक्स नहीं है कि ये कब होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है पैकेजिंग चार्जेस। पैकेजिंग चार्जेस को ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों लिया जा रहा है? बिकॉज ये गुड्स को सेलेबल बना रहा है। ये गुड्स को क्या बना रहा है? सेलेबल बना रहा है। मतलब जब तक पैकिंग नहीं होगी आपका गुड्स जो है वो रेडी नहीं होगा सेल करने के लिए। ड्यूटी ऑन परचेज, इस तरीके से आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। फाइनली अब हम आते हैं वापस से अपने फॉर्मेट पर जहां छोड़ा था अपन ने। जी जी, प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर यहाँ पर अपन बाय वापस आ जाते हैं और हमारे ट्रेडिंग अकाउंट पर, और ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक ये लिख दिया। अब मेरा यदि डेबिट साइड का बैलेंस कम पड़ रहा है, डेबिट साइड का, डेबिट साइड ये है हमारी, क्रेडिट साइड ये है। डेबिट साइड हम क्या लिख रहे हैं? सारे एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड क्या लिख रहे हैं? सारी इनकम। यदि ज्यादा हो जाए, ये वाला सेक्शन ज्यादा हो जाए, तो यहाँ पर कम पड़ेगा कोई चीज। कम पड़ेगा क्या? इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो फायदा ही होगा। तो जिसको लिखा जाएगा यहाँ पर टू ग्रॉस प्रॉफिट। और यदि हमारा एक्सपेंस साइड ज्यादा बढ़ जाता है, डेबिट साइड ये वाला सेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, डेबिट वाला, क्रेडिट कम रह जाता है, मतलब हमने एक्सपेंस ज्यादा कर दिए, उसको लिखा जाएगा ग्रॉस लॉस। ग्रॉस इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि अभी ये फाइनल लॉसेस और फाइनल प्रॉफिट नहीं है, फाइनल नहीं है अभी ये, बहुत कुछ होने होना है अभी। और क्या? बाय सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली, और कोई डायरेक्ट इनकम होती नहीं है। और आपकी नजर में हो तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज डिस्कशन क्लास। इधर देखिए, मैंने कल आपको बताया था, एक सिंपल सा रूल है आपके पास, डेबिट ऑल द एसेट्स
expenses and losses. Credit all the income, gain and the liability. ट्रायल बैलेंस तो सिर्फ इतनी से रूल पर बेस्ड है, सिर्फ इतने से। अब कैश है, मान लो कैश क्या रहेगा आपके लिए इन छह में से? एसेट्स है, तो डेफिनेटली कैश का बैलेंस कहाँ लिखा जाएगा? ट्रायल बैलेंस में, डेबिट साइड। लोन लिया आपने, लोन आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी आप देखो कहाँ दिख रही है? लाइबिलिटी आपको दिख रही है कि मुझे किस साइड लिखना है? क्रेडिट साइड लिखना है, ट्रायल बैलेंस में। ठीक है ना? चलिए, अब आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गई, ग्रॉस लॉस आ गया। इसी अकाउंट को कंटिन्यू कर दें, यदि इसी अकाउंट को यदि कंटिन्यू कर दिया जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है क्रेडिट साइड बाय ट्रेडिंग अकाउंट्स। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट, और चाहे तो आप ट्रेडिंग अकाउंट की जगह पर ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, यदि लॉस था आपको तो आप लॉस को ट्रांसफर करेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट्स। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्या? ग्रॉस लॉस। नहीं नहीं, इसी का कंटिन्यू कर रहे हैं अपन इसको। ठीक है ना? यहां तक आपको कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ये हमारा एक कॉलम ऐसे चल रहा है अमाउंट वाला। ये हमारा अमाउंट है ना। किसी को कोई कैसे भी क्वेरी हो आप अभी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ये जब लाइन बना दी और यहां से एक नया अकाउंट ओपन कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट इट्स बिकम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ऊपर लिख दूंगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे ही मैंने डबल लाइन से इसको क्लोज किया और यहाँ से दूसरी कहानी मैंने चालू करी, वही हमारा क्या कहलाने लगेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहलाने लगेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ऊपर जो ग्रॉस प्रॉफिट था उसको ट्रांसफर कर दो, या ग्रॉस लॉस था तो उसको ट्रांसफर कर दो। दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है। इकट्ठा ग्रॉस प्रॉफिट या इकट्ठा ग्रॉस लॉस एक साथ नहीं हो सकते। या तो आपको बिजनेस में प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, इकट्ठा नहीं होगा कि प्रॉफिट भी है लॉस भी है, या तो आप जीरो पर आ जाएंगे। ठीक है ना? अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो चुका है। अब हम क्या लिखना है इसके डेबिट साइड में? अगेन लिखना तो आपको एक्सपेंस ही है, लेकिन कौन से एक्सपेंस लिखने हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखने हैं आपको। नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? दीज आर द एक्सपेंसेस, जैसे अभी इन्होंने बताया कि दीज आर द एक्सपेंसेस विच आर सर्टेन। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि दीज एक्सपेंसेस आर सर्टेन, फिक्स होते हैं, क्या होना ही है। पर्टिकुलर ड्यूरेशन की बात होते हैं, कभी भी नहीं होते। ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन की बात होती है। तीसरी चीज, दीज एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू योर एसेट्स। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसका एक्सपेंस है? मान लीजिए मशीन है, मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा, तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। दूसरा एग्जांपल, लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कहाँ आएगा ये? प्रॉफिट एंड, तो ये किस चीज का एग्जांपल हो गया? एसेट्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस, एसेट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। सो वापस से शुरू करता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आते हैं सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है या तो वो सर्टेन होंगे, किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे होंगे,
एसेट से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। यही सारे एक्सपेंसेस आपके क्या कहलाएंगे। और मोस्ट बेसिक चीज, इनका मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं होता, ये डायरेक्ट हमारी ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। जो ऑफिशियल वर्क होते हैं वहां से रिलेटेड होते हैं ये सारे। अब कौन कौन से एक्सपेंसेस यहाँ पर आएंगे, देखिए जैसे कि सैलरी हर महीने देना है, रेंट हर महीने देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने देना है, डेप्रिसिएशन एसेट्स पर लगना है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एसेट्स पर लगना है। और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट का लोन यदि आपने लिया है तो आपको इंटरेस्ट पे करना है हर महीने। और क्या आ सकता है, हर महीने आपकी स्टेशनरी आती है, फिक्स है, कैरीज आउटवर्ड, हाँ इंटरेस्ट ऑन, वही इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन या जो भी जितनी भी इंटरेस्ट है सब एक ही में डाल दो, जितने भी इंटरेस्ट है सब उसमें डाल दो। और ऐसे कोई एक्सपेंस याद आ रहे हैं आपको, क्या रिचार्ज सेम अपन आ जाते हैं क्रेडिट साइड। जैसे अपन ने देखा कि डेबिट साइड इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ रहे हैं, तो क्रेडिट साइड आएगा इनडायरेक्ट इनकम। क्रेडिट साइड आपका क्या आएगा, इनडायरेक्ट इनकम। ऐसी इनकम जो कभी ना कभी हमारी फिक्स हो, है ना, मतलब हमें हर महीने मिल ही जाए। यहाँ पर तो और लंबी लिस्ट है एग्जाम्पल की। जैसे आप देखोगे, जैसे आपने अभी इंटरेस्ट पे किया ना लोन पर, तो हो सकता है आपने डिपॉजिट भी किए हो कुछ बैंक में पैसे, एफडी वेफडी बनवा के रखी हो, तो आपको इंटरेस्ट हर महीने मिल भी सकता है। तो बाय इंटरेस्ट रिसीव, हो सकता है आपको किसी चीज पर कमीशन मिल जाए। और कौन कौन सी इनकम हो सकती है आपके लिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ यदि हमें कोई रेंट दे रहा हो, यदि हमने अपनी लैंड किसी को दे के रखी हो, तो रेंटल इनकम हमारे लिए हो सकती है बाय रेंटल इनकम। और कौन सा, ये, ठीक है ना। तो इसके बाद फाइनली इतना सब करने के बाद इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट होते हैं जो अपन ने ऊपर किए थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड इनकम, ये प्लस माइनस यहाँ पर भी होते हैं। इतना सब करने के बाद फाइनली यदि हमारा एक्सपेंस वाला पार्ट ज्यादा हो जाए, एक्सपेंस वाला पार्ट ज्यादा हो जाए और इनकम वाला पार्ट कम रह जाए, इनकम वाला पार्ट कौन सा है आपका, ये वाला, ठीक है ना। और एक्सपेंस वाला आपका पार्ट कौन सा है, डेबिट वाला। तो यदि हमारे एक्सपेंस ज्यादा हो जाए और इनकम कम रह जाए, तो फाइनली हमारे लिए हो जाता है ये नेट लॉस, एंड दिस लॉस इज द फाइनल लॉस। आप फाइनली लॉस में चल रहे हैं। और यदि आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा हो जाए, इनकम ज्यादा हो जाए मतलब, और एक्सपेंस कम रह जाए, तो आपके पास जो बैलेंस बचेगा उसको बोलेंगे अपन टू नेट प्रॉफिट, दिस इज द फाइनल प्रॉफिट, ठीक है ना। ये ओनर का फाइनल प्रॉफिट रहता है। अब अपन इसको सिस्टमेटिक फॉर्मेट में देखते हैं साइड में, देखिए अब आपको यहाँ पर बहुत सारे, देखिए मैंने सैलरी आपको बताया था एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड है, ऑफिस रेंट, रेट एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्ज, पोस्टेज टेलीग्राम, इंश्योरेंस, ऑडिट फी, लीगल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये हर महीने आपको देने ही पड़ते हैं। कुछ मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस हैं जैसे कि रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। क्यों क्यों है ये इस साइड क्यों आया, क्योंकि दीज एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू द एसेट्स, अभी बताया मैंने। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब सारे मैंने अभी अभी आपको बताए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, सैलरीज, गोडाउन रेंट, कैरीज आउटवर्ड, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड सेलिंग एंड कमीशन। अब आप यहाँ पर आते हैं, बैड डेट्स समझा देते हैं, व्हाट इज द बैड डेट्स।
कुछ दिन पहले समझाया था कि डेटर्स नाम की कोई चीज होती है। व्हाट इज डेटर्स? जिन लोगों से हमें अभी पैसा चाहिए है, ठीक है ना, और जिन लोगों से हमें पैसा चाहिए कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एसेट्स है, और अब वो लोग हमें पैसा या तो नहीं दे रहे हैं, हम मान चुके हैं कि अब वो हमें पैसा नहीं देंगे। मे भी शायद वो देश से चला गया हो आदमी, या फिर उसकी डेथ हो गई हो, या इंसॉल्वेंट हो गया हो, कुछ भी हो गया हो। अब जब हमारे एसेट्स खराब हो रहे हैं, एसेट्स से हमको लॉस हो रहा है, तो अभी अभी मैंने समझाया कि कोई भी लॉस जो एसेट से रिलेटेड हो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो यदि कोई डेटर्स हमारे पैसे नहीं देता है तो हम उसको क्या मान लेते हैं? बैड डेट्स। जब उम्मीद ही खत्म हो जाए तो बैड डेट्स। ठीक है ना। फिर है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब आते हैं, दो बातें आपको समझानी पड़ेंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन एंड रिजर्व? जैसे कि शॉर्टकट में कहा जाए, जैसे आपकी गाड़ी में रिजर्व लगता है ना, बाइक में रिजर्व लगता होगा। बाइक में पेट्रोल में रिजर्व लगता है, क्यों लगता है वो? कि टोटल ओवरऑल पेट्रोल में से कुछ पेट्रोल बचा रहे, कि कभी खत्म हो जाए तो धक्का ना मारना पड़े। सेम हम क्या करते हैं कि अपने प्रॉफिट में से, हमारे पास जो भी प्रॉफिट बचता है उसमें से हम कुछ पैसा अलग रख लेते हैं, इस हिसाब से कि मान लीजिए फ्यूचर में कुछ लॉस होता है तो उससे हम बच लेंगे। बट रिजर्व इज नोन लाइबिलिटी एंड अननोन, सॉरी, अननोन लाइबिलिटी एंड अननोन अमाउंट। ना हमें पता है कितने का नुकसान होगा, ना ही ये पता है कि कितने का अमाउंट हमको रखना चाहिए साथ में। दैट इज कॉल्ड एज अ रिजर्व। लेकिन आपको पता है कि फ्यूचर में मुझे 10,000 का लॉस होने वाला है, पता है पहले से कि हो सकता है। उसके लिए यदि आपने रिजर्व बना के रखा है तो दैट रिजर्व बिकम द प्रोविजन। समझिएगा बात को। लाइबिलिटी भी नहीं पता क्या आएगी फ्यूचर में, और कितने अमाउंट की आएगी नहीं पता। उसके लिए यदि आपने पैसा बचा के रखा है, दैट इज कॉल्ड एज द रिजर्व। आपने 5 लाख रुपए बचा के रखे, आपसे पूछा किस लिए बचा के रखे, पता नहीं, रख लिए बस, हो सकता है फ्यूचर में कुछ हो जाए, समस्या आ जाए। तो आपको नहीं पता कि कितने की समस्या आएगी, लेकिन आपने रख लिया अमाउंट, दैट इज कॉल्ड एज अ रिजर्व। लेकिन आपको पता है आपका जन्मदिन आने वाला है, दोस्त पार्टी मांगेंगे ही मांगेंगे, 2,000 का खर्चा तो आएगा ही आएगा, फिक्स है। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, पार्टी भी फिक्स है, कुछ अमाउंट भी फिक्स है, क्योंकि आपने नोट कर लिया कि अच्छा 20 दोस्त हैं, 100-100 रुपए का भी खाएंगे तो कम से कम 2,000 तो हो ही जाएंगे खर्च। तो नोन इवेंट के लिए, जो आपको इवेंट पता है होगा ही होगा, उसके लिए भी आपने पैसे कुछ बचा के रखे, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोविजन। और सेम यहाँ पर हो रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग हमारे पैसे नहीं देंगे, उसके लिए आपने पहले से तैयारी करके रख ली है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और अगेन हमारे लिए एक नुकसान की तरह है ये, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था एक प्रिंसिपल ऑफ प्रूडियंस। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडियंस कहता है कि आने वाले लॉसेस के लिए आप प्रिपेयर रहो, और आने वाले लॉसेस के लिए प्रिपेयर रहो, और आने वाली इनकम्स के लिए आप इग्नोर करके चलो। तो आने वाला लॉस है ये बैड डेट्स के, लग रहा है कि कुछ लोग हमें पैसे नहीं देंगे, इसलिए हमने उसका प्रोविजन बना लिया। ठीक है। इतना सब करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड भी आती है। क्रेडिट साइड में मैंने क्या बोला, सारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम आती है, जैसे कि डिस्काउंट रिसीट, कमीशन रिसीट, है ना, और इसके बाद आपका बैंक इंटरेस्ट, रेंट, आपने प्रॉपर्टी कोई दी है, रेंटल इनकम मैंने लिखा हुआ था, डिविडेंड फ्रॉम शेयर, अभी आपने भाई साहब ने बताया था ये। इसके बाद है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। जैसे कि डेबिट साइड अपन ने क्या लिखा था, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, क्रेडिट साइड क्या आ गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। इतना सब करने के बाद या तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, या आपको क्या होगा, लॉस होगा। इसको हम या तो नेट लॉस लिखेंगे या फिर नेट प्रॉफिट लिखेंगे। ठीक है ना। ये देखिए आपको नेट प्रॉफिट के नाम से लिखा जाएगा। अब ये नेट प्रॉफिट किसका हो गया, पैसे किसने लगाए थे फॉर्म में, ओनर ने लगाए थे, लेकिन फर्म ने प्रॉफिट कर लिया तो वो किसको देगी, ओनर को। लेकिन यदि फर्म को लॉस हो जाता
तो ओनर से और कैपिटल लगवा लेती हो। दैट्स वाई मैंने शुरू में कहा था कि प्रॉफिट इज द लाइबिलिटी टू द फर्म, क्योंकि प्रॉफिट लौटाना है। एंड लॉसेस इज द एसेट टू द फर्म, क्योंकि लॉसेस फर्म जो है वो कवर कर लेगी अपने ओनर से। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अब हमको फाइनली छोटा मोटा अपन मतलब थोड़ा बहुत ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमको नहीं, देखिए आपकी फर्म है, देखिए आपकी इतनी बड़ी फर्म है, देखो आप कितनी बड़ी फर्म है, इतने एरिया में आप काम कर रहे हो। यहाँ आपका कुछ खाली डला था, तो आपने अब ये जो जमीन है वो किसकी है? फर्म की है, फर्म की है, वी आर द फर्म। ठीक है ना, फर्म की है। हालांकि ये बात अलग है कि ये किसने पैसा दिया होगा, उन्होंने दिया होगा कैपिटल लगा के। तो फर्म तो हमारी है, फर्म का जितना भी इक्विपमेंट है वो सब हमारा है, मतलब फर्म का है। तो यदि इस फर्म का कोई भी हिस्सा हमने किराए विराए पर दे दिया है, तो उससे जो कमाई होगी दैट इज कॉल्ड एज अ रेंटल इनकम। ठीक है ना। और कुछ आपका डाउट बच रहा है क्या? तो ये तो अभी बहुत फास्ट फॉरवर्ड में समझाया है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। अभी इसके बाद बैलेंस शीट भी फास्ट फॉरवर्ड चलेगी थोड़ी, फिर थोड़ा सा स्लो पे आ जाएंगे अपन। ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या रहेगा आपका। अरे रिजर्व सारे, जैसे देखिए रिजर्व्स वगैरह बेसिकली आपके आते हैं बैलेंस शीट में। नहीं नहीं नहीं, वो पार्टनरशिप की आप बात कर रहे हो कि जब बैलेंस शीट, जब आपका पार्टनरशिप में, देखो मैं बता दे रहा हूँ, आपका जो डाउट है वो ये है, ये आपकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में पहले से रिजर्व रहते हैं। रिजर्व क्यों बनाए गए, अभी मैंने क्या समझाया? एक्सपेक्टेशन है कि कुछ लॉस हो जाएगा, लेकिन साल भर में कोई लॉस हुआ ही नहीं। तो अब इस रिजर्व का क्या किया जाए? वापस से ओनर को दे दो। अब ओनर कौन थे? सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर है हमारा सिंगल, पार्टनरशिप में कौन है? पार्टनर। और कंपनी में कौन है? शेयर होल्डर। तो रिजर्व का कोई काम नहीं हुआ, तो वापस से दे दो, है ना। जी। हाँ, तो प्रोविजन आप अलग अलग कर सकते हो प्रोविजन। वो आप जो प्रोविजन देखिए, यहाँ पर आप बैलेंस शीट में जब यहाँ आप ऐसे लिखते हो ना, डेटर्स और माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अब वो हमारी कवर हो गए तो हम यहाँ से हटा देते हैं। सिंपल सी बात है। और यहाँ से भी हट जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी हट जाएगा उसका। समटाइम क्या होता है कि जो हमने बैड डेट सोचे थे वो वापस आ जाते हैं। पता चला कि एक्स वाई जेड आदमी था, हमने सोचा कि अब वो तो पैसे देगा ही नहीं, हमने उसको क्या मान लिया? बैड डेट मान लिया। लेकिन कई बार वो अचानक से आ गया कि भैया पैसे ले लो तुम्हारे, तो दैट इज कॉल्ड एज अ बैड डेट रिकवर। तो अलग से अकाउंट खुल जाता है फिर बैड डेट रिकवर अकाउंट, क्योंकि उसको तो अपन मान चुके थे, खत्म ही था वो तो फिर इसको बैड डेट रिकवर नाम से भी लिख लिया जाता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोविजंस। अभी मैं क्या है कि सिर्फ सिंपल सिंपल चीजों पे जा रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस भी खत्म करना है, सबको समझ में भी आ जाए, ऐसा कुछ सिस्टम मिल जाए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, वो कॉमर्स वाले जानते हैं। क्या? अभी अभी उतना नहीं देंगे, अभी तो मतलब सबका टेक केयर करना है, मतलब जो नॉन कॉमर्स वाले हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान देना है कि भाई उनको नुकसान ना हो जाए।